Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it is my third lecture in respect of the Civil Procedure Code, Part 2. Order 27A. Suits involving any substantial question as to the interpretation of constitutional law. अब इसमें जो बात की गई है कि सूट में शमूलियत अख्तियार करने के लिए कोई भी कानून साजी के मुतालिक कोई सवाल अगर हो तो इसका ऑर्डर 27 का जो रूल फर्स्ट कहता है कि नोटिस टू दी एडवोकेट जनरल इन एनी सूट इन विच इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट any substantial question as to the interpretation of the constitutional law is involved, the court shall not proceed to determine the question until after notice has been given to the Attorney General for Pakistan if the question of law concern the federal government and to the Advocate General of the province if the question of law कंसर्न अ प्रोवेंशनल गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब प्रोवेंशनल या अपना फेडरल के अगेंस्ट आप कोई भी ऐसा कोई सूट दाखिल कर रहे होते हैं तो बिफोर ऑफ दैट फाइलिंग ऑफ द सूट इट इज़ नेसेसरी पार्ट दैट यू मस्ट नोटिस टू द अटॉर्नी जनरल अंडर ऑर्डर 27A उसका रूल फर्स्ट, उसके तहत आप उनको नोटिस करेंगे। Without that notice, that question of law shall not be determined by the court. It is fact. Dear students, after that, there is Rule 2 of the Order 27A of the Civil Procedure Code. Court may add government as party. The court may at any stage of the proceeding order that the federal government or provincial government shall be added as a defendant in any suit involving any substantial question as to the interpretation of constitutional law if the Attorney General for Pakistan or the Advocate General of the province, as case may be, whether upon receipt of notice under Rule 1 or otherwise applies for such addition and the court is satisfied that such addition is necessary or desirable for the satisfactory determination of the question of law involved. It means कि कोर्ट किसी भी वक्त गवर्नमेंट को जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट या अपना फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एज ए डिफेंडेंट किसी भी सूट में ले सकती है। इट इज़ अप टू द कोर्ट दैट आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंट इफ कोर्ट डीम फिट दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी अटेंड एज अ डिफेंडेंट, ही मस्ट नोटिस टू द सेम फॉर अटेंडिंग देम and their agents are present over there as the जिसे हरफ़े आम में कहा जाता है जी गवर्नमेंट के वकील, they are already available over there, so the court direct notice them and they made the appearance of the government over there in the courts. And the Rule 3 of the Order 27A of the Civil Procedure Code say that the costs when government added as party. अब यहाँ पर कॉस्ट की बात यह है कि खर्च अखराजात where under Rule 2 government is added as a defendant in a suit, the Attorney General, the Advocate General or the government shall not be entitled to or liable for cost in the court which order the addition unless the court having regard
to all the circumstances of the case for any special reason otherwise orders। अब ये नहीं है कि जनाब वाली उनको बना लिया है पार्टी कोर्ट ने या उनको बुलवा लिया है, तो अब केस जो भी डिसाइड हो व्हाट्सोएवर, तो भाई वो अपने खर्चा खराजात कोई कोर्ट प्लेंटिफ साइड से लेकर देगी, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पे अपनी ले रहे होते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी केसेस होते हैं उन्होंने वो प्रोसीड करने होते हैं, इट इज़ देयर ड्यूटी। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ अ सिंगल पेनी पे टू दी एडवोकेट जनरल और अदर व्हाट्सोएवर एट दैट टाइम। So they are under a legal obligation to appear and defend the cases, which cases come against the governments, federal government or provincial government as per circumstances। इसका जो है अपना ऑर्डर 4 जो है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील्स की बात हो रही है कि इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑर्डर टू अपील्स द वर्ड डिफेंडेंट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड आर रेस्पोनेंट and the word suit and appeal। ये तो आप समझ ही गए होंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो भी ऑर्डर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, व्हाट्सएवर जो भी हैं इंक्लूड उनको किया जाएगा ऐसे रेस्पोनेंट्स में, और सूट्स को जो है, जो वर्ड सूट है उनको जैसे एज ए अपील भी मतलब उसको ट्रीट किया जा सकता है। जब कोई भी सूट है वो डिसाइड होते हैं, फिर वो हाई कोर्ट तक पहुँचते हैं। तो जब वो हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं तो अपील में या रिविजन्स में एज ए ओपोनेंट लिखा जाता है जितनी भी पार्टीज़ होती हैं जो कि मुखालिफ पार्टी होती हैं। अपील्स में जो है उनको लिखा जाता है एज ए रेस्पोनेंट, और जितने भी सूट्स होते हैं उनको लिखा जाता है जनाब डिफेंडेंट्स। ये चीज़ें हैं, ये तो टाइम बिंग आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक टॉपिक था आपका इसमें लॉ ऑफ सिविल प्रोसीजर 2 में। जो ये टॉपिक है ये 3rd टॉपिक है, ये आज हमने ये कर लिया है, और एक ये छोटा सा लेक्चर है ये अब तक मैंने आज जो है वो जनरेट कर दिया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे आपके ऑर्डर 28 सूट्स बाय और अगेंस्ट मिलिट्री और नेवल मैन और एयरमैन। अभी ये आपका टॉपिक बनता है जाके चौथा। इसके अंदर जो आपका जो शेड्यूल है उसमें जो टॉपिक्स दिए हैं उसमें ये चौथा टॉपिक है कि सूट्स बाय और अगेंस्ट मिलिट्री और नेवल मैन और एयरमैन। इसके मुतालिक जो है नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।